A very good afternoon to all. I, Dr. Ganesh, welcomes all the dignitaries and today's speaker, Dr. Rajesh Uike, sir, a coordinator for this lecture series, respected Professor Anukul Chandrakar, sir. And I request Kar, sir, to introduce Dr. Rajesh Uike, sir. Thank you, Dr. Ganesh. Yes. Good afternoon, all the dignitaries who joined this platform. I'll now introduce Dr. Rajesh Uike. First introduction is he is my student, and he did his graduation from Jivaji University, Gwalior in 2010 and completed his MD Ayurveda in Rognidan and Vikriti Vigyan in 2013 from Department of Vikriti Vigyan, Faculty of Ayurveda, BHU Varanasi. After completing his MD from Banaras Hindu University, he has been appointed as assistant professor in various colleges in Aligarh, Indore, and now he is working. He has a total teaching experience of more than 9 years. And now presently he is working as an assistant professor in Department of Rognidan and Vikriti Vigyan, Government Dhanvantari Ayurveda College and Hospital, Ujjain, MP. His area of research is standardization of Purusha Pariksha in Ayurveda and cardiac care in Ayurveda. He is working in cardiac care now. He is the life member of Vishwa Ayurveda Parishad, and to his credit, he has published 13 research papers in various national and international journals, and he has delivered more than 10 guest lectures in various seminars. And recently, he has been awarded as a Corona Yodha Samman by Government of MP, by Civil Hospital Ujjain, and by Department of Ayush MP. And in 2022, he has been awarded with Nai Dunya Chikitsak Samman. So with this brief introduction, just I want to say something. Today already we are late. So I request if there is anybody any questions, so please share your question to Dr. Rajesh, who will share his number, WhatsApp number. So with this brief introduction of Dr. Rajesh, I request Dr. Rajesh to start his lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Rajesh, sir, you can start your lecture, sir. जी sir. Thank you, sir. Very big thanks, Dr. Respected Dr. Esikar sir, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. मेरा इंट्रोडक्शन मेरे गुरु के द्वारा दिया जा रहा है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए. Respected Dr. Atul Varshney sir, respected Dr. Ganesh Kole sir, and all the respected professors, associate professors, my colleagues and my juniors. Today we are discuss about Purusha Pariksha in Ayurveda. Purusha is a very important mala of our body, and mala are the basic fundamental component of our the body. Acharya Charak said that the dosh dhatu malmullam hi shariram. आचार्य चरक ने कहा है कि जो हमारा शरीर होता है दोष धातु और मलों से मिलकर बना होता है. शरीर में जितना इम्पोर्टेंस धातु और दोषों का होता है उतना ही मलों का भी होता है. मलों को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, शारीरिक मल और धातुगल मल. शारीरिक मलों को आचार्य वाग्भट ने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें मूत्र, पुरीश और स्वेद है. धातुगत मलों को हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जिसमें रस का कफ होता है, रक्त का पित्त होता है, मांस का खमल होता है, मेद का स्वेद होता है, अस्थि का केश, नख और लोम होते हैं, और मज्जा के त्वचा और अक्षि का गठ होता है, और शुक्र का यवन पीड़िका होते हैं. तो यहाँ पे जो मलों का इम्पोर्टेंस है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का मल है. तो जो शरीर के मल है, शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है
उसका जो परिणाम होता है वो हमें मलों के रूप में देखने को मिलता है कि शरीर में किस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उन्हें हम मलों के द्वारा देख सकते हैं। ऐसा कहेंगे कि जो मल होते हैं वो हमारे शरीर का आईना होते हैं, क्योंकि शरीर में क्या सही है क्या गलत हो रहा है अगर हम किसी माध्यम से अगर असेस करेंगे तो वो है मल। कुछ चिकित्सक इन मलों को फिजिकली, क्लिनिकली या कुछ वैद्य, कुछ चिकित्सक उसे लेबोरेटरिकली असेस करते हैं। आजकल जो लेबोरेटरिकली बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं वो हमारे शरीर में हो रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, अधिकतर उन्हें हम जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ही असेस करते हैं, और इनका सामान्य मात्रा में बनना और शरीर से उत्सर्जित होना ये स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। और अगर हम देखिए कि इनका शरीर में अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या शरीर की सारी क्रिया समयक रूप से चलती है तो इनका निर्माण भी समयक रूप से होता है और उचित समय में शरीर से इनका निष्कासन होता है। तभी हम स्वस्थ कहते हैं, या शरीर जो होता है वो स्वस्थ होता है। और उसी स्वस्थ को आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है कि जब शरीर में दोष, सम दोषः, सम अग्निश, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। अर्थात जितना शरीर में इंपॉर्टेंस दोषों का है, धातुओं का है, अग्नि का है, उतना ही इंपॉर्टेंस मलों का भी। यदि मल और दोष आदि धातुएं समान मात्रा में है तो हमारे इंद्रिया और मन भी प्रसन्न होता है, उसी अवस्था को हम स्वस्थ कहते हैं। और ऐसा WHO भी मानता है कि अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं। और स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रयोजन है आयुर्वेद का। स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि कोई व्यक्ति पहले तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी हमें इन कंपोनेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो रोगी हो गया है तो रोगी के विकार को भी दूर करने के लिए इन्हीं धातु, अग्नि और मल को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सभी मलों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। यदि हम जितने मल वर्णन किए हैं आयुर्वेद में, हमने अभी तक के उनको सीमित करके रखा हुआ है। यदि इन्हीं को आगे बढ़ाए कि जैसे रस का जो मल है वो कफ है, तो कफ के अलावा और क्या क्या मल हो सकते हैं रस के, तो उनके ऊपर हम लोग बहुत सारे लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशन है उनको डेवलप कर सकते हैं। उसी प्रकार से रक्त है, रक्त के ऊपर सिर्फ हम पित्त पे आके रुक गए हैं, उसके आगे हमने सोचा नहीं है, इनोवेटिव कोई रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए भी आयुर्वेद में कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसके माध्यम से हम उसे असेस करते हैं। और अधिकतर जो असेसमेंट होता है वो फिजिकल आधार पे होता है। तो सारे जो मल है उनके बारे में चर्चा ना करते हुए मैं सीधे आऊंगा कि हम पहले पुलिस परीक्षा पे ही डिस्कस करेंगे कि पुलिस क्या होता है और उसके माध्यम से हम क्या क्या परीक्षा कर सकते हैं। जो हम आहार ग्रहण करते हैं, पाचन के फलस्वरूप आहार से जो सार भाग बनता है उसे हम रस कहते हैं। और उसी रस से रक्त, रस आदि धातुओं का निर्माण होता है। अवशोषण के पश्चात जो बृहदात में शेष भाग बचता है आहार का, उसे हम मल कहते हैं, जो कि अपान वायु के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह मल अगर शरीर में सामान्य रूप से बनता है तो यह शरीर को उपस्तंभित करता है, मतलब शरीर को सपोर्ट देता है। और सपोर्ट के साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ये है कि ये अग्नि और वायु का भी धारण करता है। यदि ये कहे कि सामान्य रूप से अगर मल का निर्माण होता है तो किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, क्योंकि शरीर को संचालन करने के लिए वायु और अग्नि के अलावा और कुछ नहीं है। यदि इसके मात्रा में, सामान्य मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है तो शरीर हमें इंडिकेट करता है कि शरीर में आटोप होने लग जाता है, कुक्षी में शूल होता है। यदि इसकी मात्रा में क्षय होता है तो पार्श्व में पीड़ा होती है, हृदय में पीड़ा होती है, और वायु शब्द के साथ में कुक्षी में संचरण करता है। तो सिर्फ इन्हीं लक्षणों के आधार पे ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इतने ही सिम्टम्स होते हैं। अगर मल का निर्माण सही होता है तो वायु और अग्नि का धारण होता है, और अग्नि का और वायु का धारण हो गया है तो किसी भी प्रकार के शरीर में विकृति उत्पन्न नहीं होती है।
अगर मान लो वायु और अग्नि का धारण सही नहीं होता है तो मल में विभिन्न प्रकार के दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है और मुख्य रूप से आम की उत्पत्ति होती है। तो आम की उत्पत्ति से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो पुरीस का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये हम लोग सब पढ़ते आए हैं कि जब भी हम आहार ग्रहण करते हैं, आहार पे सबसे पहले बोधक कप की क्रिया होती है। बोधक कप की क्रिया होने के बाद में अन्न का बोलस फॉर्म में बन के आमाशय में आता है। सबसे पहले पित्त की क्रिया होती है, फिर उसके बाद में कप की क्रिया होती है, जिससे अन्न का क्लेदन हो जाता है और एक मधुर भाव उत्पन्न होता है या अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे मधुर अवस्था पाक कहते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से कप का प्रकोप होता है। और जैसे ही अन्न क्लेदित हो जाता है, ये आगे ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी जो है ये अग्नि का मुख्य स्थान होता है और ये समान वायु के द्वारा संचालित होता है। जैसे ही अन्न ग्रहणी में जाता है, उसका पाचन हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप फिर से यहाँ पे एक अवस्था पाक उत्पन्न होती है, जिसे हम अम्ल अवस्था पाक कहते हैं। यहाँ स्वाभाविक रूप से पित्त का प्रकोप होता है। अन्न का पाचन होने के पश्चात यह आगे क्षुद्रांत में जाता है और आहार जो होता है वो पंचमहाभौतिक होता है। इसी आहार पे सभी पंचमहाभौतिक अपनी अपनी क्रिया करते हैं। पाचन के फलस्वरूप जैसे ही भूताग्नि की क्रिया होती है, यहाँ से आहार रस जो है वो हो जाता है व्यान वायु की उपस्थिति में। अगर यहाँ पे भूताग्नि की क्रिया सही नहीं होगी तो अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण के पश्चात रस धातु में चला जाता है। धातुअग्नि की क्रिया से अपने अपने धातुओं का पोषण होता है और एक निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में मलों का निर्माण होता है। और जो आंत्र में शेष रहता है और अवशोषण के बाद में उसमें कटुता उत्पन्न होती है, या ऐसे कहेंगे कि कटु अवस्था पाक उत्पन्न होता है। यहाँ पे भी स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। तो होने के बाद में जब वात प्रकोपित होता है तो व्यान वायु सक्रिय होकर उस मल को शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से पुरीस का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो आहार ग्रहण करते हैं तो जो पाचन क्रिया है वो मुख से ही चालू हो जाता है और गुदा पर्यंत जो है वातादि दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए जो पुरीस होता है वो दोषों और अग्नि को धारण करता है। अगर दोषों में कोई विषमता नहीं होगी तो अग्निवेश्य में नहीं होगा, अग्निवेश्य में नहीं होगा तो आम का निर्माण नहीं होगा और किसी भी प्रकार की व्याधियां नहीं होगी। तो हम पुरीस से ये जान सकते हैं कि किस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है, अग्नि की क्या अवस्थाएं हैं, साध्यता असाध्यता को पता कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम पुरीस के द्वारा आम का पता कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य वाग्भट ने ये कहा है कि अगर शरीर में वातादि दोष वैश्य में होता है तो अग्नि वैश्य में होता है और अग्नि से आम का निर्माण होता है। उन्होंने बोला कि सर्वा रोग अपि मंदाग्नो सूत्रा मुद्राणी च अचिन मलिनिश्च अन्य जायते मल संचयाय। तो जब भी दोषों का वैश्य में होगा, अग्नि वैश्य में होगा और अग्नि का जब वैश्य में होता है तो आम का निर्माण होता है। तो जो आम का निर्माण होता है महास्रोतस लेवल पे तो उसे हम बृहदांत कहेंगे। यदि यह अग्नि सम्यक है, पाचन भी सम्यक हो रहा है, लेकिन अवशोषण के बाद में धातुओं की अग्नि या जो अपने अपने धातु है उनकी अग्नि अगर प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पे भी चमक नहीं होगा और उस धातु से संबंधित मलों की उत्पत्ति ज्यादा होगी। तो उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि आम जो है वो सभी रोगों का कारण कैसे हो सकता है। तो हम एक सिंपल गाड़ी के इंजन का उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हमारी गाड़ी है, अगर हमने पेट्रोल और ऑक्सीजन प्रॉपर या हम प्योर पेट्रोल का यूज करते हैं तो उसके जो इंजन है उसमें जाके उसका प्रॉपर कंबस्टन होगा। कंबस्टन के बाद में एनर्जी बनेगी और उस गाड़ी के लिए उपयोग होगा और एक उचित मात्रा में जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो बनेगा, जिससे ना गाड़ी को नुकसान होगा ना वातावरण को नुकसान होगा। लेकिन यदि उसी गाड़ी में हम इम्प्योर पेट्रोल का यूज करते हैं तो कंबस्टन प्रॉपर नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं बनेगी तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। वैसे ही हम शरीर में देखें कि यदि शरीर में हमने खाना अच्छा खाया है, प्रॉपर मात्रा में खाया है तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा। डाइजेशन अगर प्रॉपर होता है तो सेलुलर लेवल पे एटीपी बनती है और एटीपी बनती है तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन और भी वेस्ट होते हैं, जैसे अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये सामान्य रूप में बनते हैं और ये शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। लेकिन मॉडर्न में भी ये है कि अगर इनका पाचन सही नहीं होता है तो एटीपी नहीं बनेगी प्रॉपर, और जो मल है वो ज्यादा मात्रा में बनेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि जब भी अगर एनर्जी नहीं बनती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो मलों का तो संचय होगा ही होगा, और यहाँ पे एक मल और है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सभी बीमारियों के लिए, वो है फ्री रेडिकल्स। क्योंकि जैसे मैंने अभी समझाया था कि यदि आयुर्वेद के अनुसार हम आहार का सेवन करते हैं, दोष की क्रिया सम्यक होती है और पाचन सम्यक होता है, तो सम्यक रूप से मल मूत्र का निर्माण होता है और उसका उत्सर्जन होता है, तब हम उसे स्वस्थ कहते हैं। यदि यह पाचन क्रिया सही नहीं होगी, दोष वैषम होगा, अग्निवेशम होगी, तो पाचन होगी और जो महास्रोतस लेवल है वहां पे आम बनेगा, जिसको हम बृहद आम कहेंगे, जिसको हम नेक्ड आई के बिना भी और ऐसा ही यदि महास्रोतस की अग्नि सही है, उसके बाद में भी आहार पाचन होने के बाद में अगर धातु है, सातों धातु में से भी कोई भी धातु का जो पाचन है वो प्रॉपर नहीं है या धात्वाग्नि प्रॉपर नहीं है, तो उनका भी अगर प्रॉपर अग्नि है तो पाचन सही होगा, तो मल कम बनेंगे। यदि पाचन सही नहीं होगा तो मल ज्यादा बनेंगे, और जो वहां पे जो मल बनता है उसे हम सूक्ष्म मल कहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पुलिस परीक्षा, तो पुलिस परीक्षा को हम असेस करने के लिए या जो रोगग्रस्त अवस्था है उसको असेस करने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि सबसे पहले रोगम आदो परिचिते तत् अंतरम औषधम तत्कर्म विशद पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, मतलब जो व्याधि अवस्था है सबसे पहले उसे हमें असेस करना है, उसके बाद में औषधि की योजना बनानी है, और उसके बाद में भी शास्त्र का पालन करते हुए और अपने व्यवहार के अनुसार रोगी के रोग को जानकर फिर उसका उपचार करना चाहिए। तो रोगी और रोग को असेस करने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग विधियों का वर्णन है कि रोग को हम किस माध्यम से जान सकते हैं, और रोगी की परीक्षा जो है वो जानने के लिए अलग मेथड का उपयोग किया है यहाँ पे, जैसे द्विविध परीक्षा है, त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध, पंचविध। तो इनको मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सीधे आता हूँ पुलिस परीक्षा पे। तो पुलिस परीक्षा को हम दो प्रकार से असेस कर सकते हैं, एक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल और एक है जल निमंजन पुलिस परीक्षा। तो जो आयुर्वेद में फिजिकल पुलिस परीक्षा या फिजिकली जो पुलिस परीक्षा का वर्णन है किसी एक चैप्टर में वर्णन नहीं है, लेकिन आचार्य योग रत्नाकर ने इसे अष्ट विशेष स्थान जो है अष्ट स्थान परीक्षा है उसमें स्थान दिया हुआ है और वहां पे उसका डिटेल वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो फिजिकली असेस करते हैं पुलिस की एब्नॉर्मलिटी को, तो वो सभी डिसीजों में अलग अलग लक्षणों के रूप में या पूर्व रूप के रूप में या प्रकारों के रूप में उनका वर्णन है। तो हमने यहाँ पे उसको कंपाइल किया है और कोशिश किया है जो पंचेंद्रिय और प्रश्न के द्वारा किया जाता है, तो उसके अनुसार हम असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चक्षुंद्री परीक्षा है जिसमें हम कलर का असेसमेंट करते हैं। तो कृष्ण वर्ण मिलेगा, हमें श्याव वर्ण मिल सकता है, श्याव अरुण वर्ण मिलेगा, शुक्ल वर्ण या फिर रक्त वर्ण मिलेगा। कृष्ण वर्ण मिलता है तो स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, तो उसे देख के हम वातज ज्वर, वातज अर्श, पांडु आदि व्याधि है उनका विनिश्चय कर सकते हैं। श्याव अरुण वर्ण अगर मिलता है तो वात तो प्रधान रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में और भी जो दोष है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। शुक्ल वर्ण का अगर मिलता है तो कफ दोष की प्रधानता को इंडिकेट करता है और अलग अलग व्याधियों के प्रकारों को भी हम निश्चय कर सकते हैं। रक्त वर्ण का अगर मिलता है तो रक्त वर्ण का जो होता है वो पित्त की प्रधानता को बताता है और अलग अलग व्याधियों को हम इसके माध्यम से विनिश्चय कर सकते हैं या उनकी परीक्षा कर सकते हैं। वैसे ही अगर पुरुष में फेन की मात्रा या फोर्थ की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो वातज अर्श हो सकता है, वातिक अतिसार हो सकता है, वातिक ग्रहणी या वात प्रकोप हो सकता है। अगर जो स्टूल या पुरुष की जो कंसिस्टेंसी है वो अगर एबनॉर्मल होती है तो एबनॉर्मल क्या क्या हो सकता है, तो सांप है,
विबंध या ग्रथित हो सकता है, बद्ध हो सकता है, हो सकता है, भिन्न या शुष्क हो सकता है, जिनको देख के हम अलग अलग प्रकार की व्याधि एवं उनके प्रकार है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही घ्राणेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय से जिसे ओडर या गंध का ज्ञान करके हम रोगों का विनिश्चय कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ओडर में दुर्गंधित मिलेगा, अति दुर्गंधित होगा, आमगंधी होगा, मिश्रगंधी, पूर्णगंधी होगा। और स्पर्श के द्वारा भी हम शीत है, उष्ण है या उष्ण शीत है आदि का पता लगा सकते हैं। फिर प्रश्न परीक्षा है, तो प्रश्न परीक्षा के द्वारा हम एबनॉर्मल क्वांटिटी जैसे पूछ सकते हैं कि अल्प है, अल्पल्प है, अति प्रवृत्ति है, मुहुर्मुहुर है, संघ है या भेद होता है। तो जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से हम रोगों का विनिश्चय कर सकते हैं। फिर जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है, डेफिकेशन होता है, तो ससूल हो रहा है, प्रवाहन के साथ में हो रहा है, परिकर्तिका के साथ में हो रहा है, कुंतन के साथ में हो रहा है, या गुदा में श्राव के साथ हो रहा है, या चीर दुखक के साथ में हो रहा है। तो जिस प्रकार से जो फाइंडिंग है उसके अनुसार हम व्याधियों को डायग्नोस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आम होगा पुरुष में तो आम जो है वो यहाँ आम अतिसार हो सकता है, कवच अतिसार हो सकता है, वातज ग्रहणी, कफज ग्रहणी, प्रत्येक ग्रहणी, तो ये तो डिसीज है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि महाश्रोत्रस में कहीं पे भी अग्निवेशम में होता है, दोषवेशम होता है, तो वहां अग्निवेशम होगा, और अग्निवेशम होगा तो आम का निर्माण होगा। तो हम इस विषमता को यहाँ पे पहले से ही ज्ञात कर सकते हैं, और अगर पहले से ही अगर ज्ञात हो जाता है तो वहाँ हम डिसीज होने से उसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पुरुष है, इसके ऊपर में क्रिटिकल रिव्यू के आधार पे हमने पेपर पब्लिश किया है, जो कि आयु जनरल में पब्लिश हुआ है। हमें डिटेल में अगर देखना है तो इस पेपर पे हम जा सकते हैं। इसके बाद में जो आम को असेस करने के लिए जो विशेष विधि है जो आयुर्वेद में वर्णित है, उसे हम कहते हैं जल निमंजन पुरुष परीक्षा। तो दोनों ही आचार्यों ने, आचार्य सुश्रुत एवं आचार्य चरक ने इनका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं श्रम षष्ठे में भी दोषस्तु नयस्तम अप औषधिति पुरुषम भ्रंशम दुर्गंधिम पिच्चिलम आम संगीतम इता अन्य तो लिंगानि विपरीतानि यस्य वे लाघवम च विशेषण तस्य पक्वम विनिर्देशति। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जब वातादि दोषों के साथ जब पुरुष संश्लिष्ट होता है या दूषित होता है तो पुरुष में दुर्गंध अधिक आती है और उसमें पिच्चिलता होती है, और जब उस पुरुष को हम जल में डालेंगे तो वह डूब जाता है, जिसे हम आम संज्ञा जिसको हम आम पुरुष कहते हैं। यदि इसके विपरीत पुरुष में गंध कम होता है, पिच्चिलता कम होती है, तो हम उसे, और जब उसे जल में डालेंगे तो वह जल की सतह पे तैरता है, तो उसे हम निराम कह सकते हैं। उसी प्रकार से आचार्य चरक ने भी कहा है कि मजत्ते आम गुरुत्वाद विट पक्वा तुत्पलवते जल, अर्थात जो आम मल होगा गुरुता की वजह से जब जल में डालेंगे तो जल में वो डूब जाता है। यदि पक्व मल होगा तो पाचन के सम्यक पाचन के फलस्वरूप जब जल में डालेंगे तो वह जल की सतह पे तैरता है। लेकिन चरक ने कहा है कि हमें किस मल की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, तो आचार्य चरक कहते हैं कि बिना अति द्रव संघात सत्यम श्लेष्म प्रदूषणात्, मतलब जो मल अधिक द्रव युक्त है या बहुत ज्यादा संघात मात्रा में है, बहुत अधिक शीतलता है या श्लेष्मा की उसमें अधिकता है, तो ऐसे मल की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और आचार्य चरक भी ये कहते हैं कि अगर इसके विपरीत लक्षण मिलते हैं कि अगर जल में डाला और वह तैरता है तो उसे निराम, और जल में डाला तो गुरुता की वजह से वो डूब जाता है तो वो आममल है। तो आचार्य चरक ने तो यहाँ पे, आचार्य चरक और सुश्रुत ने तो यहाँ पे कहा है कि सिर्फ जो मल होता है वो दुर्गंध युक्त रहेगा, पिच्चिल होगा, और जल में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, इसे हम आम कहेंगे। लेकिन सभी आचार्यों ने ये कहा है, मतलब ये तो कहा है कि जल में डालने पर डूब जाए तो वो आम है, और जल की सतह पे तैरेगा तो वो निराम है। लेकिन ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है कि किस समय में मल की परीक्षा करनी चाहिए, किस जल में उसकी परीक्षा करनी चाहिए, कितने ऊपर से उसे डालना चाहिए, किस पात्र में उसकी परीक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जो कि संहिता में वर्णन नहीं है।
तो इसी श्लोक को आधार बना के हमने एक पायलट स्टडी किया था, जिसमें ये डिसाइड किया था कि यूरिन जो पुलिस जो है किस प्रकार के कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए, समय में उसका एग्जामिनेशन या परीक्षा हो जाना चाहिए, किस प्रकार के जलों में वेरिएशन होता है। अलग अलग प्रकार के जलों को हमने पायलट स्टडी में टेस्ट करके देखा, अलग अलग कंटेनर को यूज करके देखा, अलग अलग वॉल्यूम वाले, फिर अलग अलग हाइट से उनको ड्रॉप करके देखा। तो पायलट स्टडी दोनों को हेलो, तो जो पैरामीटर फिक्स नहीं थे तो हमने एक पायलट स्टडी किया जिसमें पैरामीटर फिक्स किए, और पैरामीटर जब फिक्स हो गए उसके बाद में हमने इसी जो रिसर्च को है इसे हेल्दी इंडिविजुअल में परफॉर्म किया, और हेल्दी इंडिविजुअल में परफॉर्म करने के साथ में ही जो आर्म से रिलेटेड जो व्याधियां है उनमें भी हमने उसको परफॉर्म किया, और उसी रिसर्च के आधार पे ये निकल के आया। और ये रिसर्च जो है जो हेल्दी इंडिविजुअल पे हमने अप्लाई किया है, इसका पेपर पब्लिश हुआ है मेडिकल जर्नल DY पाटिल में। अगर हम इसे देखना चाहे तो डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। तो इसी के आधार पे क्या निष्कर्ष निकला है उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यदि हम ये कहते कि किसी का मल जो है वो सिर्फ पूरे इसमें पानी में डालने पे अगर वो डूब जाता है तो उसे आम कहेंगे, तो ये सही नहीं है। तो हम आम कब कहेंगे, तो क्या क्या निकल के आया है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो उस जिस भी रोगी या स्वस्थ व्यक्ति की अगर हमें आम की परीक्षा करनी है तो उसके पहले हमें उसकी अग्नि का असेसमेंट होना चाहिए कि उस व्यक्ति में क्या अग्नि का स्टेटस है, विषम अग्नि है, मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है या समाग्नि है। तो यदि आम का है तो हमें विषम भी हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है या मंद हो सकता है, और फिजिकली जब देखेंगे तो वह अति दुर्गंधित होगा, कलर में वेरिएशन आएगा, और उसी स्टूल या उसी पूरी अगर हम पीएच देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक मिलेगा, और जब एसिडिक मिलेगा तो उसको हमें जब जल पुलिस परीक्षा करेंगे तो वह मल जो है डूबना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जिस रोगी या जिस इंडिविजुअल का पूरी में दुर्गंधता थी, अग्निवेश में थी, पीएच एसिडिक था, उनका मल यहाँ पे सिंक हो रहा है। और इसी मल के सैंपल का जब हम माइक्रोस्कोपिकली जब एग्जामिनेशन करेंगे तो इन चारों पैरा रोगी में अग्निवेशन होगा, फिजिकल वो डूब जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक है कि स्टूल जो है या पूरी जो कैसे कहेंगे तो इसके विपरीत है, उसका जो अग्नि असेसमेंट करते हैं तो राजेश उसमें अग्नि आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। समान Hello, sir. Your voice is breaking. समाग्नि होगी, और जब हम फिजिकल डॉक्टर राजेश, हेलो यूज प्रोसेस करेंगे तो उसमें हेलो सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। हेलो, कलर उसका नॉर्मल होगा, कुछ नेटवर्क इश्यूज है लग रहा है। आई थिंक he joined
But his voice is breaking. I think his network coverage. ज्यादा नहीं होगा, म्यूकस ज्यादा नहीं होगा और हल्का ही होगा, और जब हम उसके जल रहेगा या तैरता हुआ दिखाई देगा, अग्नि सामान्य है, फिजिकल वेरिएशन है, उस इंडिविजुअल का जो पुलिस है, और इसी इंडिविजुअल का जब हमने माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत कम या फ्यू मात्रा में सकते हैं क्योंकि अग्नि सम है, फिजिकल वेरिएशन प्लॉट करता है, और माइक्रोस्कोपिकली उसमें अंडा स्टूल में एब्सेंट है, अर्थात से जो हम लोगों ने रिसर्च किया है कि जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो कम होता है। डॉक्टर राजेश, हेलो। हेलो सर, शायद उनको आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। नमस्ते। तो सर यहाँ लेक्चर तो खत्म हो गया? हाँ, अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं आ रही है अभी तो। I think somehow he has left the meeting, sir. हाँ, लीव हो गया मीटिंग से, तुम्हारे यहाँ से नहीं है वो मीटिंग में। हाँ, I think somehow he has left. Might be network coverage is not proper on अभी his side. दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, just. डिस्कनेक्टेड हो गया लग रहा Hmm. Yes, disconnected, sir. फोन करके देखो सर। है। एक बार फोन करिए एक बार। हाँ, he is joining now, sir. Saying here. Hello, Dr. Rajesh, can you hear me? ज्वाइनिंग नहीं हुआ अभी, आ रहे हैं। ज्वाइन हुए थे सर अभी वो। तो नेटवर्क इश्यूज होता है। नेटवर्क इशू लग रहा है। सर हाँ, हेलो। हेलो सर। यहाँ से आवाज सही नहीं आई सर, मैं फिर से करता हूँ हाँ कंटिन्यू। सर, प्लीज शेयर योर स्लाइड्स। वही स्लाइड से दिखाओ जो स्टैंडर्डाइजेशन से। जी सर। सर अभी आवाज सही आ रही है सर? यस सर, आ नाउ रही है योर सही है। वॉइस इज क्लियर सर।
आयुर्वेद में जो आचार्यों ने एक यूनिक मेथड है जल निमज्जन पुरुष परीक्षा, इसी को हमने स्टैंडर्डाइज किया था। तो संहिता में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि किस समय में पुरुष की परीक्षा करना चाहिए, किस जल में करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, किस पात्र में करना चाहिए, कितने ऊपर से उसे ड्रॉप करना चाहिए। तो ये पैरामीटर फिक्स नहीं थे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने एक पायलट स्टडी किया और फिक्स किया कि हमें जो स्टूल है किस प्रकार के कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए, कितने समय में उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। अलग अलग प्रकार से जो जल है या वाटर है उसको लेके हमने पायलट स्टडी किया। तो निकल के उसमें ये आया कि सभी प्रकार के जो अलग अलग, जैसे हमने डिस्टिल वाटर लिया, नल का पानी लिया, इसके अलावा और जगह के पानी का यूज किया, तो उसमें वेरिएशन नहीं आया था। इसलिए हमने सोचा कि जो सिंपल वाटर, टेप वाटर है, वो बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए सिंपल वाटर को हमने यूज किया। उसके बाद में अलग अलग हाइट पे हमें टेस्ट करके देखा कि कहीं हाइट की वजह से वेरिएशन तो नहीं आता है। और एक हाइट को हमने फिक्स किया 5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत इजीली हम उसे स्टूल को ड्रॉप कर सकते थे और बहुत ज़्यादा वेरिएशन रिजल्ट में नहीं आ रहा था। और जो कंटेनर की बात करें कि किस प्रकार के पात्र में उसको करना चाहिए, तो हमने प्लास्टिक के कंटेनर में करके देखा उसको, और कांच के गिलास वाले कंटेनर में करके देखा, ताकि हमें जो उसमें फ्लोटिंग हो रहा है और सिंक हो रहा है उसका पता चले। तो सबसे बेस्ट जो कंटेनर था, क्योंकि अलग अलग कंटेनर में करने के बाद में रिजल्ट भी ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा था, तो हमने कांच का जो कंटेनर है उसका यूज़ किया और उसमें भी अलग अलग वॉल्यूम को लेके किया। तो वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो इस प्रकार से जो पैरामीटर थे कि कंटेनर को फिक्स किया, कंटेनर के साथ में वाटर को फिक्स किया, वाटर के बाद में किस में करना चाहिए, किस प्रकार के पात्र में करना चाहिए, उसको फिक्स करके हाइट फिक्स किया, और उसकी जो मात्रा थी उसको हमने फिक्स ही रखा। तो ग्राम जो है उसको ड्रॉप करते थे 2 ml के करीब। और ये जो पायलट स्टडी होने के बाद में हमने हेल्दी इंडिविजुअल पे उसको स्टडी किया, और जो हेल्दी इंडिविजुअल पे स्टडी हुई है स्टैंडर्डाइजेशन की, उसको अभी DY पाटिल मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो हम उसमें डिटेल में जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ में हमने आम से रिलेटेड व्याधियां है उसमें इस टेस्ट को परफॉर्म किया। तो इस टेस्ट के या इस रिसर्च से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि आचार्य ने कहा है कि किसी भी रोगी या व्यक्ति का जो मल है उसको हम जल में डाल देंगे, और डालने पे वो अगर डूब जाए तो उसे आम कहेंगे। तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ कि उनका, कि हम उसका एक भाग देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये आम है। तो रिसर्च से निकल के आया, तो हमें उस इंडिविजुअल की अग्नि का असेसमेंट होना चाहिए। यदि हम आम का असेसमेंट करते हैं तो उस इंडिविजुअल में अग्नि वैषम्य होगी, विषमाग्नि हो सकती है, तीक्ष्णाग्नि या मंदाग्नि हो सकती है। और समान तो बहुत रेयर होगा कि समान कोई वॉइस ब्रेक हो रहा है राजेश, वो वीडियो चलने में नहीं हो रहा है शायद। हाँ शायद सर, वीडियो के टाइम पिछले लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर, आप वीडियो बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा या लिंक। हेलो। फोन फोन कर लीजिए।
Hello, is my screen visible now, sir? गणेश जी, सर मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है। हाँ विजिबल हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से चालू कर दीजिए, वहां से एक्सप्लेन करते हैं। Yes, sir. Is this visible now, sir? हाँ विजिबल विजिबल। Okay, sir. तो ज्वाइन हो रहे हैं। Hello. Hello, Dr. Rajesh, sir. Hello. ज्वाइन हो गए क्या? ज्वाइन तो हुए थे सर, तो ऑडियो कनेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ शेयर करता हूँ तो मुझे पार्टिसिपेंट्स नहीं दिखेंगे। अच्छा मैं देख लेता हूँ। हाँ सर लास्ट में शेयर करिए सर। हाँ ओके सर। सर हाँ बस यहाँ पे सर अभी प्ले नहीं करना सर। ये आम के असेसमेंट के लिए है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का जब हम सर फिर से प्ले करिए सर। ओके सर। एक मिनट बस एक मिनट स्किप करिए सर। जो जल निबंधन पुलिस परीक्षा है उसको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है, क्योंकि उसके कोई भी पैरामीटर का वर्णन नहीं किया था कि किस प्रकार के कंटेनर में उसको कलेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार के कंटेनर में परफॉर्म करना चाहिए, कितने हाइट से उसको ड्रॉप करना चाहिए, किस प्रकार के वाटर का उपयोग करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले एक पायलट स्टडी परफॉर्म किया। उसके बाद में हमने पैरामीटर डिसाइड किया कि हमें यूरिन कंटेनर के लिए प्लास्टिक का कंटेनर यूज करना है, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ग्लास का जो जार है या ग्लास का सिलेंडर है उसको यूज करना है, कितने हाइट से ड्रॉप करना है और कितनी मात्रा में लेना है और किस प्रकार का वाटर यूज करना है। तो सबसे पहले पायलट स्टडी जो कंडक्ट करने के बाद में पैरामीटर फिक्स हुए। पैरामीटर फिक्स करने के बाद में इस स्टडी को हमने नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पे परफॉर्म किया और उसके जो रिसर्च है वो अभी जो DY पाटिल मेडिकल जर्नल है उसमें पब्लिश्ड है। इसी के साथ में हम लोगों ने जो आर्म से रिलेटेड व्याधि है उसमें भी इसी टेस्ट को परफॉर्म किया और इस पेपर में हम इसके डिटेल को देख सकते हैं। और इसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला कि हम किस आधार पे और किस किस पॉइंट को लेकर हम ये कहेंगे कि जो इंडिविजुअल है या रोगी है उसका मल जो है वो आम है और उसका मल जो है वो निराम है। तो सर वीडियो पे आइए सर। सर वीडियो फर्स्ट वाला, हाँ ये जब हम किसी इंडिविजुअल का आम का असेसमेंट करेंगे तो उसके पहले हमें अग्नि का असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें आम का अगर हमें लक्षण मिलते हैं तो उसमें अग्नि उसकी मंद हो सकती है, विषम होगी, या ऐसा कहेंगे कि अग्नि जो है वो वैषम्य होगा। और उसी व्यक्ति का जब स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिजिकल वेरिएशन ज्यादा मिलेंगे, अति दुर्गंधित होगा, कलर में वेरिएशन होगा बहुत ज्यादा मात्रा में या नॉर्मल से ज्यादा म्यूकस मिलेगा। और जब हम केमिकल एग्जामिनेशन या पीएच देखेंगे तो उसका एसिडिक होगा
और उसी व्यक्ति का स्टूल को जब हम जल निपंजन परीक्षा करके देखेंगे तो वो जल में डूब जाएगा, जैसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं। स्टूल है, ड्रॉप करेंगे तो ये आम की वजह से ये जल के जब माइक्रोस्कोपिकली अगर एग्जामिन करेंगे, नहीं सर चलिए, हाँ माइक्रोस्कोपिकली अगर एग्जामिन करेंगे तो उसमें अंडाशय पार्टिकल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, उसका रिजल्ट जो है तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि उनमें अंडाशय पार्टिकल होगा, तो फाइनल रिजल्ट ये होगा कि उस व्यक्ति का जो अग्नि है वो वैसे में रहेगा, फिजिकल वेरिएशन ज्यादा होंगे। केमिकली जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो पीएच उसका एसिडिक होगा, जल में डालने पे डूबेगा, और माइक्रोस्कोपिकली उसमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो मल में है उसमें आम की उपस्थिति है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्ले करिए। हाँ, निराम के लिए अगर प्ले करूं सर स्लाइड। निराम जब असेस करेंगे या लक्षणों के आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि निराम होगा, तो उस व्यक्ति में अग्नि उसकी सम होगी, अगर निराम होगा तो अग्नि सम होगी, और जब उसका हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे तो फिजिकली जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस कम होगा, कम दुर्गंधित होगा, म्यूकस नहीं के बराबर होगा, और उसी व्यक्ति के स्टूल की जब हम केमिकल या पीएच एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें न्यूट्रल मिलेगा या फिर अल्कलाइन मिलेगा, और उसे जब हम जल में डालेंगे तो आम के विपरीत यह जल में डालने पे जल की सतह पे तैरेगा या फ्लोट करेगा। इस प्रकार से ये निराम के सपोर्ट करने वाले पैरामीटर जिनमें थे, जिनमें अग्नि सम हो रही थी और पीएच उनका एल्कलाइन था, फिजिकली बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं थे। सर आएगा वीडियो, चलेगा सर, वो थोड़ा हाई डेफिनेशन में है वीडियो सर, इसलिए वो ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, ये हाँ, इस प्रकार से स्टूल क्या होगा, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा, और इंडिविजुअल का जब हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो उसमें आम की अपेक्षा इसमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल कम मिलेंगे, तो इसके आधार पे हम ये रिजल्ट असेस कर सकते हैं कि जिनमें निराम होगा उसकी अग्नि सम होगी, फिजिकल वेरिएशन कम होंगे, पीएच में उसका न्यूट्रल होगा या एल्कलाइन होगा, जल की सतह पे डालने पे वो फ्लोट करेगा, और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल कम मिलेंगे, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये निराम है और इसमें आम उपस्थित नहीं है। और एक चीज और निकल के आई है कि जिन इंडिविजुअल में जो आम है और जब हम जल की सतह पे डालते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वाटर का वो ज्यादा होता है और निराम वाले में कम होता है, तो एक उसका भी पैरामीटर है कि जो आम जो है उनमें वाटर डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा, मतलब 4 से लेके 8 mm तक के होता है, और जो निराम वाला होता है उसमें 2 से लेके 4 mm तक ही वाटर क्या होता है, डिस्प्लेस होता है या डिफ्लेक्ट होता है। तो जी सर ये हो गया। हाँ, ये निराम के लिए है, जैसे वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में फ्लोट करता है, और माइक्रोस्कोपिकली जब देखते हैं तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कम मिलते हैं। हेलो जी सर।
स्क्रीन शेयर स्टॉप करो सर। हाँ, स्टॉप कर दीजिए। Thank you, Dr. Rajesh Uike, sir. Thank you very much. For concluding remarks, I request Professor Anukul Chandrakar, sir, to give concluding remarks. Please, sir. Thank you, Dr. Ganesh. Thank you, Dr. Rajesh, for showing your work, which you have done during your post-graduation period. I think it was a very shortcut presentation due to time constraint. आयुर्वेद में दो ही लेबोरेटरी परीक्षा बताई गई है, एक मूत्र परीक्षा, एक परिसर परीक्षा, जिसका एक आयुर्वेद के जो लेबोरेटरी टेस्ट मूत्र परीक्षा में तैलबिंदु परीक्षा जो असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस के लिए किया गया है, ऐसे ही पुरुष परीक्षा में आम और निराम डिटेक्ट करने के लिए जल निमज्जन का विधि बताई गई है। डॉक्टर राजेश ने बहुत अच्छे तरीके से किसी तरह से हम फिजिकली पैरामीटर फिक्स कर सकते हैं स्टूल एग्जामिनेशन करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई आयुर्वेद में कोई चैप्टर ऐसे सेपरेटली डेडिकेटेड नहीं है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में मिलता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन पैरामीटर को हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेश ने इसको भेरिया संहिता से कलेक्ट करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे एक वर्ण है, कंसिस्टेंसी है, उसका शब्द है, उसका रूप है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड एक पैरामीटर उन्होंने डिसाइड कराया है जो प्रशंसा योग्य है। एक दिशा देगा कि हम फिजिकली एग्जामिनेशन करते हुए स्टूल को एक डिजीज का अनुमान लगा सकते हैं। सिमिलरली जो मल परीक्षा है, केवल लिखा है सुश्रुत चरक में कि जल पे जो डूब जाएगा वो आम है और जो जल में फ्लोट करेगा वो उसमें निराम है। तो इतना पैरामीटर हम लोगों ने जो स्टडी किया था इसको, कि एक पैरामीटर को लेके कि डूबना ही आम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हेल्दी इंडिविजुअल में जिसका अग्नि लगभग समाग्नि था, तो बहुत सारे हेल्दी इंडिविजुअल में भी उन्होंने देखा कि वो भी मल डूब रहा है। तो किसको आम कहेंगे, किसी को आम नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसको एक पैरामीटर बनाया जाए कि केवल जल निमज्जन ही एक पैरामीटर नहीं हो सकता आम और निराम डिटेक्ट करने के, तो उसके और भी पैरामीटर फिक्स करने होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जिसका अग्नि डिरेंज्ड है, जैसे अग्नि है या मंदाग्नि है, प्लस जिसका स्टूल एसिडिक पीएच है और जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ज़्यादा है, फिजिकली म्यूकस ज़्यादा है, उस टाइप के स्टूल को हमने देखा कि वाटर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। हेल्दी इंडिविजुअल में देखे कि 2 to 4 ml हो रहा था, लेकिन इसमें 4 से ज़्यादा होने लगा। तो ये एक हम लोगों ने फिक्स किया कि एक पैरामीटर से ना करके मल्टीपल पैरामीटर लेके आम को डिटेक्ट करना चाहिए। तो इसी तरीके से निराम मल का भी डिटेक्शन जो डॉक्टर राजेश ने वीडियो करके दिखाया, तो इस तरीके से जो चीज़ संहिता में वर्णन नहीं है, तो उसको पैरामीटर, एक मॉडर्न नॉलेज को लेके पैरामीटर लेके हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि आम का क्या पैरामीटर होना चाहिए और निराम का क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेश ने एक अच्छे तरीके से इसको समझाया कि आम और निराम को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओवर टू डॉक्टर गणेश। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेश उइके सर। यहाँ पे किसी सर क्वेश्चन है एक सर, they can ask you please type your contact number in chat box, so if they want to ask a question they will directly ask you. We are not going to take any questions today on the request of Professor Anukul Chandrakar sir. So I just would like to highlight some points. Definitely sir, there is जस्ट इतना कह के आचार्य चरक जी ने छोड़ दिया था कि जल निमज्जन परीक्षा, लेकिन कितने मात्रा में, कौन से हाइट से लेना चाहिए, कौन सा पात्र लेना चाहिए, ये आपने काफी अच्छा वर्क किया और डेफिनेटली अनुकूल चंद्रकार सर के गाइडेंस में काफी अच्छा वर्क हुआ सर ये। और ऐसा है नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए किया, आपने वीडियोस भी दिखाया और वीडियोस में दोनों दिखा, जल निमज्जन और पानी के ऊपर तैरता है वो दोनों दिखाए।
बाद में एसिडिक और अल्कलाइन स्टूल का रिजेम्बलेंस विथ साम एंड निरामन, ये एक नया पॉइंट मिला हमारे पर्सनली मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और काफी इसमें करने लायक है। इसके ऊपर हम पुरुष परीक्षा आयुर्वेद के हिसाब से डेफिनेटली आयुर्वेद की पुरुष परीक्षा जिसके ऊपर मानक आपने तैयार किए हैं सर, काफी अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि आपने जो सर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है सर, आप उसका लिंक एक बार चैट बॉक्स में डाल देंगे तो बाकी जो लोग हुए उनको भी ये थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा आगे के लिए सर, डेफिनेटली सर। या आपके जो कीनोट शब्द रहते हैं ना सर, जो हम आर्टिकल के नीचे लिखते हैं, ताकि कम से कम वो तो भी डाल दीजिए। डेफिनेटली काफी अच्छा वर्क है सर। और पर्सनली मैं प्रोफेसर अनुकूल चंद्रकार सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने पुरुष परीक्षा के ऊपर टॉपिक लिया, क्योंकि जनरली जब पुरुष परीक्षा लेते हैं तो थोड़ा सा पीजी स्कॉलर भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार कौन सा टॉपिक दे दिया हमें। और राजेश सर का भी काफी अभिनंदन इसके लिए कि आपने ये टॉपिक लिया, बहुत जरूरी था। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हम पैथलैब के लिए अगर कुछ करते हैं तो पहले हमारे इसमें जो लिखा है उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं आज की भाषा में। डॉक्टर राजेश ने बहुत मेहनत किया इसे करने के लिए, ये उन्हीं का मेहनत है, और उनका इंटरेस्ट भी था, मेहनत भी था, इंटरेस्ट भी था। लेकिन कृष्ण तो आप है ना सर, अर्जुन भले ही महाभारत में लड़ा होगा लेकिन कृष्ण तो आप ही है ना सर। नहीं ठीक है, स्टूल को हैंडल करने के लिए वो बहुत बच्चे इच्छा नहीं करते हैं स्टील को कैसे हैंडल करें, लेकिन डॉक्टर राजेश ने विदाउट एनी हेजिटेशन सुबह मॉर्निंग 5 बजे आके अपना काम शुरू करते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। On the last note, I would like to thank Professor Anupul Chandrakar sir, who has voluntarily accepted a request to coordinate for the September month. और सर ने काफी अच्छे स्पीकर भी दिए इस मंथ के लिए, और पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को एक चांस दिया सर ने कि हम जैसे लोग भी है जो कुछ बता सकते हैं नए लोग कम्युनिटी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। I think we have done for today. With the permission of respected Kar sir and respected Rajesh sir, I would like to conclude today's session with their permission. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.